کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ریکارڈنگ چونکہ ختم ہو چکی ہے, اب جو حال میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ محمد زہیب. زہیب کدھر آئے تھے؟ بہاولپور سے. بہاولپور سے آئے ہو؟ جی جی. اچھا یہ بتاؤ, انجینئر صاحب کا جو آپ کو تعارف ہوا تھا وہ نیگیٹو ہوا تھا یا پازیٹیو ہوا تھا؟ شروع میں تو بالکل نیگیٹو ہی ہوا تھا. اچھا. اور مگر اب جب آگے خود دیکھا ہے تو اس سے بالکل الگ ہی ہے. الگ ہی. بہت بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ. آج ٹائملی آئے تھے, پروگرام دیکھا سارا؟ جی جی. صبح 8 بجے. آج کا پروگرام کیسا تھا؟ بہت زبردست ماشاء اللہ. 2 دوست ہیں ہم ساتھ. آج تو بڑی لمبی نشست ہوئی ہے, 4 گھنٹے لگ گئے. بالکل. اچھا یہ بتاؤ, انجینئر صاحب سے آپ نے دین کا جو کچھ سیکھا وہ کیا سیکھا, کیا فرق آیا آپ کی لائف میں انجینئر صاحب کو سننے کے بعد؟ ظاہر ہے پہلے جاہلیت تھی تھوڑے سے, جو کسی نے بڑے نے کہہ دیا اس میں. اب انہوں نے یہ سکھایا کہ دین پڑھا, خود پڑھیں, کتاب کو پڑھیں, مطلب قرآن کی ترجمات پڑھیں, وہ پڑھیں, پھر مطلب سیکھیں. یعنی انجینئر صاحب کو سننے کے بعد آپ نے جو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ بھی کیا وہ فرق آیا آپ کو؟ جی بالکل. نماز میں چینج کیا, ہر چیز میں چینج کیا. بالکل. اچھا جو لوگ انجینئر صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ اپنا کمرہ, لوگ ان کے اپنے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج, کیا دیکھا آپ نے؟ یہ باتیں ٹھیک ہے؟ نہیں بالکل الگ ہیں. یہ تو بہت سب مطلب بہت اچھے سے اندر گئے تھے پکچر بنوا کے؟ جی بہت خوش. اچھا پاکستان میں کتنے بڑے بڑے عالم دین ہیں, ان سے ملنا ہو اور آپ نے پکچر بنوانی ہو تو کہیں بیٹھے ہوئے؟ بالکل نزدیک بھی نہیں آنے دیتے. بالکل. تو پھر یہ کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ بڑے ایزیلی انہوں نے پک کھینچی, بڑا مطلب اچھا. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان؟ آصف بیگ. آصف بھائی کدھر سے آئے ہو؟ سر میں کراچی سے آیا ہوں. کراچی سے کرنے کیا آئے تھے؟ بس انجینئر صاحب سے ملنا تھا, سنتے تو بہت عرصے سے تھے لیکن بس ایک ملنے کا اشتیاق تھا. صحیح ہو گیا. تو بس وہ ملاقات ہو گئی. انجینئر صاحب کو جو آپ کا تعارف, آپ کو جو تعارف ہوا تھا وہ نیگیٹو تھا یا پازیٹیو تھا؟ نیگیٹو تھا. پھر کیسے پتہ چلا, دیکھا بس سنا؟ سنتے رہے, دیکھتے رہے, سمجھتے گئے. یوٹیوب کے ذریعے بہت سارے دماغ کھلا. اچھا ماشاء اللہ. مولوی صاحب نے مطلب ایک دماغ کو بالکل چینج کر دیا, پتہ چلا کہ صحیح دین کیا ہے. آج صبح ٹائملی پہنچ چکے تھے سر ہم صبح 7 بجے سے اکیڈمی بنتی جب سے بیٹھے. ماشاء اللہ. پروگرام اس کا مطلب آپ نے سارا دیکھا؟ پورا دیکھا. آج تو بڑی لمبی نشست تھی, کیسی پروگرام تھا, کیسی نشست تھی؟ یہ تو اپنا بہت ہی زبردست ماشاء اللہ. یعنی لوگ 4 گھنٹے زمین پہ بیٹھ کے نہیں تھکتے انجینئر صاحب کی گفتگو. جی ایسے ہی ہے نا, پتہ نہیں چلتا. الحمدللہ ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں, اندر گئے تھے پکچر بنوائے ہیں؟ جی پکچر بھی بنوائی. کیا لگتا ہے جتنے بھی پاکستان میں بڑے نام ہیں ان سے ملنا, پکچر بنوانا کیا اتنا ہی آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل. تو پھر یہ کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ سر یہی دین کا کام ہے, انسان فرینکلی ہو کے کام کرے, جو کھل کے سمجھ. لیکن یہاں پر سارے نوجوان ہیں الحمدللہ. یہاں سارے نوجوان ہیں جن کے دماغ مطلب کوئی بریلوی, کوئی دیوبندی, کسی بھی مسلک سے تھا, لیکن اب اس کا دماغ کھلنا شروع ہو. ایسی کیا باتیں ہیں انجینئر صاحب کو نوجوان کھینچے چلے آئے ہیں, بجلی بھر دی ہے, ینگ جنریشن دیکھیں آپ, کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر اب اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, تو اب تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے اور ایسے پلیٹ فارم مل گیا ہم کو کہ ہمیں دین بہت ایزی لگنے لگا. پہلے بہت مشکل تھا یہ. اب کہانیاں چلیں گی, نہیں چلے گی, کہانیاں چلیں گی. بہت مسئلہ ہے. صحیح ہو گیا. پر بہت مزہ آیا, انجوائے کیا. بس ہمیں جانا بھی ہے, ابھی ٹائم بھی کم تھا, تو بس ہم فوراً اب نکلیں گے کراچی کے انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ الحمدللہ لیاقت علی. لیاقت بھائی کدھر سے آئے ہو؟ میں لاہور سے آیا. لاہور سے کیا کرنے آئے تھے آپ؟ یہ لیکچر سننے کے لیے انجینئر صاحب. آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ نہیں مجھ سے کسی سے نہیں ہوا تھا. میں نے یوٹیوب پر پہلے ذاکر نائک صاحب کو سنتا تھا, مختلف علماء تھے ان کو سنتا تھا, لیکن وہ چند دن کے بعد جو ہے اکتا جاتا تھا. اچھا. پھر میں واپس ذاکر نائک کو سننا شروع کر دیتا تھا. انجینئر صاحب کا نا اچانک مجھے ایک دن میں نے دیکھا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر ان کی یہ ویڈیو ہے, میں نے 2 منٹ کے لیے دیکھی تو یہ نا اہل حدیث کے بارے کوئی باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یار انہی چیزوں سے تو تانگ آئے ہوئے ہیں, تو بار بار پھر وہی باتیں سنی. تو پھر میں ذاکر نائک کو میں نے سننا شروع کر دیا. تو اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو سنتا تو ہوں نا کہ کیا کہتے ہیں یہ بھی. پھر میں نے سنا تو پھر یہ بریلویوں کے بارے بات کر رہے تھے.
अच्छा, बरेलवियों के बारे में। बरेलवियों के बारे, पहले दिन जो है ना अहले हदीसों के बारे में बात कर रहे थे, दूसरे दिन बरेलवियों के बारे में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने गौर से बात सुनी, तो इन्होंने ये जो आल इमरान की आयत नंबर 103 है उसके बारे में बात की उन्होंने जब, तो फिर मैंने गौर से बात को सुनना शुरू कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, उसके बाद फिर मैंने सबको छोड़ दिया। और ये वाहिद शख्सियत ऐसी हैं जो कि कुरान हदीस की बात करते हैं, और इनसे मैं आज तक उकताया नहीं हूँ माशाल्लाह। कोई भी उलमा है। अच्छा, सीखा क्या है इनसे? आपने क्या सीखा? आपकी ज़िंदगी में चेंज क्या आया? मेरी ज़िंदगी में चेंज अल्हम्दुलिल्लाह जो आया है, मैंने कुरान और हदीस की बातें जो हैं वो सबसे सुनी हुई थी, लेकिन जो कुरान और हदीस हमें मैसेज देते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें समझाते हैं, जो उनका हुक्म है हम पर, वो हमें पता ही नहीं था। इंजीनियर साहब को सुनने के बाद हमें पता चला है कि कुरान हमें हुक्म क्या देता है, हदीस किस चीज़ का अमल करने के लिए हमें कहती है। ठीक है, तो जब हमने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जो चेंजिंग आई है वो है, मैंने लेक्चर काफ़ी लोगों से सुना हुआ था कि नमाज जो है वो अगर नहीं इंसान पढ़ता तो वो मेरा लेक्चर सुन ले तो नमाज पढ़ेगा। इंजीनियर साहब को भी उस वक्त मैं काफ़ी बार सुन चुका था। इंजीनियर साहब का जब मैंने ये लेक्चर सुना, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो बेनमाजी है एक बार ये लेक्चर सुन ले नमाज पढ़ेगा। तो जब मैंने वो पहली बार देखा उस वक्त, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज पहले कभी छोड़ देते थे, उसके बाद नमाज कभी कोई छोड़ी नहीं। और ये पहले दाढ़ी मैंने इतनी बड़ी में नहीं रखी। जब मैंने सुना इंजीनियर साहब का, मैंने सुनना शुरू किया, उसके बाद मेरे अंदर खुद बखुद ही जो इल्म की सलाहियतें आनी शुरू हो गई, वो खुद भी जो चेंजिंग आना शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है इल्म हासिल हुआ है और शख्सियत परस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो चुका है। माशाल्लाह। अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए? हाँ जी, पहले भी मैं आ चुका हूँ। अच्छा, क्या लगता है पाकिस्तान में किसी बड़े आलिम दीन को मिलना हो इतना आसान है जितना इंजीनियर साहब बैठ के मिल रहे हैं लोगों से, पिक्चरें भी बनवा रहे हैं? भाई देखिए, मैं ये पहली बार किसी जगह पर नहीं आया, मैं दरबारों पर गया हूँ और बतौर इंतज़ामिया जा चुका हूँ। एक तो होता है ना वैसे गए हैं जाके तो होकर आ गए हैं, मैं बतौर इंतज़ामिया गया हूँ। कश्मीर कॉलोनी है, इधर भी एक हैं पीर साहब हैं, वो उनकी भी मजलिस में मैं आ चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जिस भी दरबार पर गए हैं बतौर इंतज़ामिया गए हैं या मजलिस में गए हैं, वहाँ से हमें मिलता क्या है? सर पे बांधने के लिए कोई टोपी मिल गई या फिर कोई पटा मिल गया, इल्म की कोई बात नहीं मिली। इल्म की कोई बात? इल्म की मैं दावे से कहता हूँ कि मैं किसी भी दरबार का आप नाम लेंगे, मैं बताऊँगा कि मैं गया हूँ, मशहूर जो हैं, लेकिन मुझे इल्म की बात कहीं से भी नहीं कोई मिली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद है कि प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें इल्म की बात, कुरान और हदीस की बात मिलती है। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुबशर। मुबशर भाई, किधर से आए हो? पिंडी से। क्या करने आए थे? अली भाई से मिलने के लिए। मिल लिया? जी जी जी। प्रोग्राम पूरा देखा आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम कैसा था आज? पहले ज़बरदस्त, अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। 4 घंटे से आप बैठे हुए? 4 घंटे से जी। 10:30 बजे तकरीबन शुरू हुआ था और ऐसे ही तकरीबन 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक गया? जी जी जी। अब देख रहे हैं लोग थक जाते हैं लेकिन जाते नहीं हैं। नहीं जाते कुछ। अच्छा, ये बताएं, आपको इंजीनियर साहब का जो तारुफ हुआ था वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था? पॉजिटिव था मुझे। पॉजिटिव था। मैं शुरू से काफ़ी अरसे से जो है ना वो सुनता था उनको। अच्छा, कितने अरसे से सुन रहे हैं? अराउंड 5 to 6 ईयर्स है। क्या फ़र्क क्या आया आपको इनको अपनी लाइफ में जब लेके आए तो कुछ चेंजिंग भी देखी अपनी लाइफ में? कोई फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। क्या सीखा? स्पेशली नमाज के सिलसिले में। नमाज जो है वो उनके जो बताने का तरीका था कि फ़राइज़ से शुरू करें, ठीक है जी। तो वो शुरू करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बड़ी रूटीन में आ गई है। और उसके अलावा बड़ी जो इनकी बातें हैं वो बाकी उलमा और उनसे बड़ा डिफरेंट है। कहते हैं ना कि जिसका अमल ठीक है, ठीक है जी, उसकी बात भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। जी जी, ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए? जी जी। चंदा दिया? नहीं कोई नहीं, कुछ चंदा? कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा, भी कुछ नहीं नहीं। दिया? Free of cost। चले, बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? जी बिलाल इकबाल। बिलाल भाई, किधर से आए हो? मैं जी इस्लामाबाद से। क्या करने आए थे? मैं सर दर्द सुनने आया था। अच्छा, अली दर्द सुन भाई लिया का आज? डायरेक्ट। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी पहली दफ़ा आया था यहाँ प्रोग्राम सारा देखा? पे। जी शुरू से आखिर कैसा तक। प्रोग्राम था? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 घंटे बैठे हैं आज? हाँ, टांगे जुड़ गई। जुड़ गई लेकिन गए नहीं। अच्छा, इनका तारुफ कैसे हुआ था आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर मेरे साथ थोड़ा सा इस तरह हुआ था कि मैं बहुत टाइम से बरेलवियत फॉलो कर रहा था और काफ़ी सारे मतलब उनके काफ़िलों में भी सफ़र करता था और काफ़ी सारी बातों पे इख्तलाफात भी थे, रिजर्वेशंस भी थी। सही है। तो मेरा लास्ट ईयर अल्लाह ताला ने मुझे अपने दर पे बुलाया, तो वहाँ पे खड़े होकर दुआ की थी कि या अल्लाह को सीधे राह पे लगा दे।
तो जब अल्लाह ताला से दुआ की वापस आया तो इत्तेफाक इस तरह वहाँ के कुछ वीडियोस इंजीनियर साहब की देखने की आई और वो कुछ जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे वो अनआंसर्ड वो आंसर होने शुरू हो गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगाया, मैं इंजीनियर साहब के पास चलता गया और फिर उसके बाद ये था कि अल्लाह ताला ने मेरी कुछ मसरूफियत ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रखी तो मैंने अपनी गाड़ी में इंजीनियर साहब की पहले बात तो सुनने के बाद एक दफ़ा कुरान की ट्रांसलेशन सुनी पूरी, फिर उसके बाद आजकल उन्हीं के कुरान की जो तफसीर चल रही है, जो लेसन चल रहे हैं वो उनके पास चल रहा हूँ और दैट इज़ द पॉइंट जो कि मुझे पिंच करके यहाँ तक भी ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी आए, मेरा हाफिज़ कुरान बेटा है वो भी साथ यहाँ पे आया हुआ है और अब देखें आगे भी अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, दीन की सही राह सही तरीके के ऊपर समझने की तौफीक अता करे। आमीन। अच्छा, आप कितने से सुन रहे हैं? मैंने जैसे बताया मैं लास्ट ईयर तकरीबन जनवरी फरवरी से मैंने वापस जब आया था तो उसके बाद से मैंने कुछ वीडियोस देखी थी और उसके बाद से आस्ता आस्ता शुरू कर दिया तो था। आप पहले भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इंजीनियर साहब को सुनने के बाद क्या चेंजिंग आई, क्या आपने क्या फील सर किया? अल्लाह का तारुफ सीधा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का तारुफ सीधा हो गया यहाँ पे। जो एक वो थी जिसमें मैं हर बात के ऊपर मतलब जैसे एक छोटी सी मिसाल है, जो आखिरी दफ़ा मैं जब बरेलवियों के साथ गया था तो वहाँ पे उन्होंने एक नात पढ़ी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी है काबे का किबला मेरे नबी का रोज़ा, जिसमें मैं मतलब सीरियसली उनके साथ ऑफेंडेड ही हो गया था कि यार ये बात नहीं है, मैं कितनी आपकी तावीलें दूँ कि जो बातें आप करते हैं अब ये बात मेरी हज़म से बाहर है कि जी नबी का रोज़ा जो है वो मेरे काबे का किबला नहीं हो सकता, अल्लाह से ऊपर कोई ज़ात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बस वो वहाँ पे वो एक था और मैं शुरू से एक उसमें था कि यार कोई सच्चा समझ आए, कोई सीधा नज़र आए रास्ता, अल्लाह ताला ने पकड़ाया मुझे वही अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आया जी इधर? जी पहली दफ़ा अंदर गए थे, मिल के आए? जी मिल के आया। चंदा चंदा तो नहीं मांगा उन्होंने? नहीं सर कोई चंदा कोई चंदा नहीं मांगा, नहीं नहीं बल्कि वहाँ पे तो मैंने उन्हें खड़ा होकर एक तोहफ़ा छोटा सा देने की कोशिश भी की और वो तोहफ़ा था कि मैंने कुछ सूरह यासीन पढ़ी हुई थी तो मैंने कहा जी अली भाई आपको उसका सवाब है, तो अली भाई के पास तो इतना टाइम भी नहीं था, कहते हैं ठीक है बहुत शुक्रिया जल्दी निकले। चलो जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मुस्तनसर जावेद। मुस्तनसर भाई किधर से हैं? मैं गुजरांवाला से। क्या करने आए थे? इधर वैसे तो मेरे कज़न है, हाँ। उनसे मिलने आया था तो ख़ास तौर पे ये एतवार का था तो सेशन ये देखने आया। अच्छा, इनका तारुफ आपको कैसे हुआ था, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ही रहा। मैं हमेशा से मेरा अपना एक माइंड है कि मैं नई से नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता, अपने माइंड को नैरो नहीं रखा, ओपन माइंडेडली और दीन में रिसर्च करके। पहले मैं बरेलवी था तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत की तरफ आया, अल्लाह का शुक्र है कि अब फ़िरका वरीयत से पाक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, आज सुबह जल्दी आ गए थे टाइम से? नहीं, थोड़ा लेट पहुंचा था मैं, तकरीबन 12:30 हो गए थे। अच्छा 12:30 हो गए थे, यानी आज जो आपने प्रोग्राम देखा वो कैसा था? बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। एक तरह से दीन में एक नई सोच कि अपने आप को किस तरह से अपने फ़िरका परहियत से पाक रखना है और ख़ास जो बात है कि हमने अपने आप को मुस्लिम करार देना है, बिल्कुल ऐसे। किसी भी फ़िरका परहियत से पाक होना जी है। जी बिल्कुल। और हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम ही रहना है। अच्छा आपको क्या लगता है, दीन तो हम मुसलमान हैं शुरू से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कम या ज़्यादा वो अलग बात है, इंजीनियर साहब को सुनने के बाद क्या लाइफ में चेंज क्या आया, क्या फ़र्क क्या आया? सर फ़र्क यही आया है कि दीन को समझने में एक नई जहत मिली है, मतलब कि हमने चीज़ों को क्रिटिकली देखना है, किसी की स्टेचर का या किसी की स्टेटस को देखते हुए हमने दीन को नहीं देखना। सही बात है। हमने वो चीज़ जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है उसी के ऊपर चल रहा है, उसी के ऊपर चल। बिल्कुल। अंदर गए थे, पिक्चर बनवा के आए? जी बिल्कुल बनाइए। क्या लगता है पाकिस्तान में अगर आपने किसी भी बड़े आलम दीन से मिलना है, तस्वीर बनवानी है, इतनी आसान है जितना इंजीनियर साहब बैठ के लोगों से मिल रहे हैं? नहीं, ये तो इनकी तो खास फिर बड़ा ये क्या सिस्टम काम बड़ा हो रहा अच्छा है, है, फिर ये कैसा दीन का काम हो रहा है? ये बड़ा बहुत अच्छा हो रहा है। और नहीं, ये इसमें- जो दूसरे लोग हैं जो हाँ जी, तस्वीर भी नहीं बिल्कुल बनवाते। बिल्कुल। वो सर वही आता है कि अपनी ख़ास चीज़ हमको लेके आ रहे हैं कि हम ऐसे हैं, तो वो यानी जिसको हम कह रहे हैं ना कि सेल्फ इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और वो चीज़ें ज़्यादातर इसमें अच्छा, सुबह से आप आए हुए हैं, किसी इंतजामिया ने कोई चंदा शंदा तो नहीं मांगा? नहीं, कोई चीज़ कोई ऐसा कोई चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली खान, डॉक्टर साहब किधर से आए हैं? तहसील जट डिस्ट्रिक्ट अटक से। अटक से आए हैं? जी, अटक। ये आपके बेटे हैं? जी, तीनों बेटे हैं। माशाल्लाह ताला। क्या कर रहे आए थे डॉक्टर साहब? दीन के सिलसिले में आज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ और कैसा हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव?
नहीं, मैंने तो रेगुलरली इंटरनेट को यूज़ करता हूँ, तो इंटरनेट के ऊपर ऐसे एक्सीडेंटली चेक करते करते कोई आ गए, या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कन्फ्लिक्ट वाले होते हैं, उनको देखते देखते जब देखा तो उनकी बात के अंदर एक हकीकत लगी, अच्छी लगी, दिल को बात ही है, आर्गूमेंट के साथ, वैसे नहीं कि वैसे भी बात की, तो उन चीज़ों से पे तारफ़ हुआ। उसके बाद मैं खुद भी रेगुलरली सुनता हूँ, एक दफ़ा पहले मैं आ भी चुका हूँ, अच्छा, लाइव सेशन के अंदर भी रेगुलरली आता हूँ, तो इस दफ़ा मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम है। ये बच्चों बेटा मेरा पहले आ चुका है मेरे अच्छा, साथ, लेकिन बाकी दो जो है इनके एजुकेशनल मसाइल होते हैं, हाँ, हाँ, छुट्टी सारी नहीं बात। होती, तो इस दफ़ा छुट्टी थी, मैं बच्चों को भी साथ लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं, दीन को प्रैक्टिस तो करते ही हैं। आपने जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो क्या आपको क्या लगा, क्या फ़र्क क्या आया लाइफ में कि जो आपने कहा यार वाकई जो दीन का काम ये कर रहा है और मतलब जो ज़िंदगी पर असर छोड़ा, आपको क्या लगता है? मुझे ख़ास तौर पर इनके अंदर जो ख़ास बात लगी मुझे, एक तो होती है जो लोग बाकी उलमा इकराम भी बात करते हैं, वो कहानियों से करते हैं, ये हर चीज़ को एक आर्गूमेंट के साथ, हर एग्जाम्पल की बात बताएंगे तो हदीस के साथ कुरान पाक का उसका हवाला देंगे विद रेफरेंस, ये चीज़ बड़ी जी 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 important जी है। बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो वो चीज़ दिल को बड़ी भाई। और उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं थोड़ा सा नमाज़ों के बारे में थोड़ा सा हो जाता है, सही, तो वो काफ़ी उसके अंदर रेगुलरिटी आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेन चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं या आगे भी आए नहीं, थे? मैं एक दफ़ा आ अच्छा, चुका आगे हूँ, एक पहले दफ़ा आ चुका हूँ, सेकंड टाइम पिक्चर बनवाए थे अंदर से? जी बनवाया। अच्छा, क्या लगता है आपको पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े नाम हैं, इस तरह जिस तरह इंजीनियर साहब बैठ के लोगों से मिल रहे हैं, पिक्चरें बनवा रहे हैं, और साथ जाके मिलना हो इतना ही आसान है? मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में कभी किसी और बंदे के पास कभी नहीं गया। आपको लगता क्या है? तो मुश्किल है, मुश्किल है। इन हालात के अंदर जब इनको लाइफ को थ्रेट्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ों को इस तरह मैनेज करना बड़ी काफ़ी अच्छा निज़ाम है इनका, जहाँ पे लोगों को सर्चिंग होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतनी इजीली असेस है लोगों के साथ मिलना, टाइम देना। चंदा शंदा तो नहीं मांगा? निज़ाम से याद आया, क्या चीज़? चंदा तो नहीं किसी ने मांगा? नहीं चंदा किसी ने नहीं मांगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाहज़ेब। शाहज़ेब किधर से आए हो? रावलपिंडी। क्या कर रहे हैं आज? अली भाई से मुलाकात हो गई मुलाकात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देखा आज? जी। कैसा था? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और सुबह टाइमली आ गए थे या लेट आए हो? थोड़ा लेट हो गया था मैं। 4 घंटे लोग बैठे आज, 4 घंटे। जी। अच्छा ये बताओ, आपको तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर साहब का? नेगेटिव हुआ था या पॉजिटिव हुआ था? पॉजिटिव हुआ था और इंटरनेट पे। इंटरनेट पे। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर साहब को सुनने के बाद लाइफ में क्या चेंजिंग आई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चेंजिंग, इस्लामी चेंजिंग आई है। क्या चेंजिंग? प्रैक्टिसिंग हो गए हो अब, यानी रूटीन से नमाज वगैरह अदा हो रही है, सारा कुछ। अकायद का क्या मसला? अकायद भी क्लियर हुए? अकायद भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए, क्लियर हो गई, और रफ़ल यदैन से नमाज। अंदर गए थे, पिक्चर बनवा के आए हो? जी। क्या लगता है किसी और आलिम दीन से मिलना हो, पिक्चर बनवानी हो, क्या इतना ही आसान है जितना इंजीनियर साहब से मिलना है? नहीं, बाकियों से तो मैं मिला भी नहीं ना, मुझे पता भी नहीं है। तो अगर मिलना चाहो तो क्या आपको क्या लगता है वो मिल लेंगे? शायद थोड़ा मुश्किल हो, ये काफ़ी अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, तो आसानी से मिल लेता है बंदा। चंदा शंदा तो नहीं दिया? कोई नहीं मांगा उन्होंने? अच्छा चलो, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाईजान? ये मेरा नाम दानिश शमीन है। आपका? फलक शेर जी। दानिश भाई किधर से आए हो? हम लोग ये तकरीबन सलालमगीर से आके ना 25 किलोमीटर हमारा गांव है, हम उधर से हैं जो। क्या नाम है गाँव का? गांव का नाम गोड़ाबीब के साथ। गोड़ाबीब के साथ। आप भी साथ हैं? जी जी। करने क्या आए थे इधर, पहले तो ये बताएं। हम लोग अकेडमी में आए हैं, दर्स के लिए आए थे, ज़रा सुना है। अच्छा। तो अली भाई से मुलाकात की है। हाँ फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, पहले भी मैं तकरीबन 3-4 मरतबा आ चुका हूँ। इनका तारुफ कैसे हुआ था? नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव हुआ था? आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे मामू हैं, वो शायद इधर आते रहते हैं, गुलाम फारूक उनका नाम है। वो मुझे जो है ना इनकी वीडियो वगैरह मैसेंजर पे भेजते थे, लेकिन मैं सच्ची बात ये है कि मैं सुनता नहीं था। मैं उनको लाइक कर देता, सिर्फ उनको पता चल जाए कि इसने देख लिया, लेकिन मैं सुनता नहीं था। उसके बाद एक दिन वीडियो मैंने जो है ना वो खोली है, उसमें वो कुरान की एक आयत का तर्जुमा अली भाई सुना रहे थे कि जो लोग अल्लाह से भागी हैं इस तरह कोई वो हमेशा हमेशा जन्म रहे हैं। लेकिन मेरे जहन में था हम लोग मुसलमान हैं, हम तो फिर बस वो जन्नत में ही जाएंगे।
تو اس کے بعد پھر وہ چینج آنا شروع ہو گیا, پھر سننا شروع کیا, پھر الحمدللہ 3 سال سے سن بھی رہے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ. دانش بھائی کیا چینجنگ آئی آپ کو انجینئر صاحب کو سننے کے بعد, لائف میں کوئی چینجنگ آئی واقعی لگا کہ یار نہیں فرق بھی آیا؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک تو فرقہ واریت سے ہم لوگ بالکل دور چلے گئے. پہلے ہم لوگ یعنی ہمارے فخر سے کہتے تھے ہم بریلوی اور ہم دیوبندی. میں یعنی میرا ذہن دیوبندی والا تھا, یہ میرا بھائی ہے, ہم لوگ, اور یہ اس کا ذہن جو ہے بریلوی والا تھا. جی ایسے ایسے. پھر الحمدللہ اس کے بعد ایسی چینجنگ آئی ہے کہ ہم لوگ اس سے بہت دور چلے گئے. ابھی ہم لوگوں کو کوئی بولے بھی تو ہم لوگ بولتے ہیں سچی بات ہے کہ ہمیں گالی دے لو, فرقہ نہیں, ہم نے یہ سنی دیوبندی, ہم صرف مسلمان الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا اندر گئے تھے پکچر بنوا کے, کیا لگتا ہے کسی اور بھی عالم دین کو ملنا, پکچر بنوانا اتنا ہی آسان ہے جتنا انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں؟ انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, یہ درویش آدمی ہیں. تو میں تو تقریباً جو ہے نا کبھی کبھار 10 منٹ کے لیے بھی آ جاتا ہوں, ایکشن کے پیچھے دیکھ کے پھر چلے جاتے ہیں جو ہے نا, اگر ادھر ملاقات بھی نہ بھی ہو تو. بس ابھی میرے بھائی ہیں یہ بھی الحمدللہ کافی چینج ہو گئے ہیں, فیملی بھی کافی جو ہے نا الحمدللہ. آپ نے درس سنا تھا آج؟ جی کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے جی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے عقائد جو نظریات جو تھے جس طرح پہلے, ان کے اندر فرق آیا انجینئر صاحب کو سننے کے بعد؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ جی فرق آیا جی, بہت زیادہ. چلے اللہ تعالیٰ استقامت ہے جی. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد اویس. اویس بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ بلوچستان سے, کوئٹہ سے آئے ہیں. یہ بھائی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم. نعیم بھائی آپ بھی بلوچستان سے؟ محمد بلوچستان. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ پنجاب میں اور جہلم شہر میں کیا کرنے آئے تھے؟ بس علی بھائی کی محبت, اللہ کی رضا کے لیے آئے ہم لوگ. ویسے تو علی بھائی کو بہت سنا ہے, ٹھیک ہے, وہیں پہ سنا صحیح, پر ابھی جو ہے ہم نے کہا کہ ایک دین کی جو دعوت اپنے علاقے میں پھیلانی ہے, تو کیا ہے کہ اس سے علی بھائی کے ساتھ مل کے آئے. ہمیں ایک محبت تھی, دل میں ایک جوش تھا کہ علی بھائی سے ملے, اس وجہ سے آئے ہم لوگ. ماشاءاللہ. آپ کو تعارف کیسے ہوا تھا علی بھائی کا؟ اچھا ہوا تھا, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ بس نیگیٹو ہوا تھا. اچھا نیگیٹو ہوا تھا. پہلے تو جو ہے نا کچھ دوست تھے, ان دوستوں نے بتایا کہ جو ہے نا ان کو سنو, ٹھیک ہے. ویسے جو ہمارے بڑے تھے وہ کہتے تھے اس کو نہیں سنو, قادیانی علی بھائی, ٹھیک ہے. پھر ایک ہمارے ایک دوست ہیں یہیں پہ, وہ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کا نام جاوید ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ جو ہے نا بتایا کہ جو ہے نا کلمے جو ہے نا یہ 6 نہیں ہے 4 ہیں. تو یہیں سے میرا دماغ جو ہے نا تھوڑا گھوم گیا. اس کے بعد 2-3 باتیں یہ بتائیں, نئی باتیں بتائیں کہ آپ نماز کا طریقہ یہ جو ہے نا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو حنفی نماز ہم پہلے پڑھتے تھے آبا و اجداد سے, جب ہم نے کتابیں کھولی, علی بھائی کو سننا شروع کیا, تو دیکھا کہ واقعی جو ہے نا اصل دین یہیں سے مل رہا تھا ہمیں. جی. اچھا ویس بھائی یہ بتائیں, آپ نے جب سے علی بھائی کو سننا شروع کیا تو لائف میں چینج کیا آیا؟ لائف میں چینج یہی آیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا, پہلے تو داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا اگر فرض مطابق نہیں رکھتے ہیں تو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ چہرے پہ تھوڑی سی داڑھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چینجنگ یہ آئی کہ الحمدللہ توحید کو سمجھا, توحید کے علاوہ جو ہے نا شرک سے دور ہو گئے, بڑی بات یہ ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ جو ہے نا اپنی نماز کو سب سے پہلے ٹھیک کیا, گھر والوں کو تبلیغ کی. وہ البتہ جو ہے نا کچھ گھر والوں کے ساتھ اختلاف ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ایک بڑا بہنوئی ہے, والد صاحب سے فوت ہو گئے, بڑا بہنوئی ہے, وہ دیوبندی ہے. ویسے ہم لوگ ویسے دیوبندی تھے, ٹھیک ہے, یہ بھائی بریلوی تھے. بس یہ کہ آبا و اجداد سے بریلوی دیوبندی ہمارے علاقے میں یہی ہے زیادہ تر, شیعہ حضرات کا تعلق ہی نہیں ہے زیادہ تر, ٹھیک ہے. تو وہیں بس جو ہے نا ان سے شروع ہوتے ہوتے بس الحمدللہ اللہ نے صحیح راستہ دکھایا, قرآن و سنت پہ آ گئے. اندر گئے تھے پکچر بنوا کے آئے ہیں؟ جی بنوا کے ہیں الحمدللہ. اچھا کیا لگتا ہے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں, عالم دین ہیں, ان کو ملنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح انجینئر صاحب مل رہے ہیں؟ نہیں, بالکل مشکل ہے بہت. میں نے اس سے پہلے, ٹھیک ہے, میرے بھائی ابھی آئے تھے, وہ ملتان گھوم کے گئے, ملتان کے بعد فیصل آباد گھوم کے گئے. انہوں نے یہی کہا کہ میں مولانا طارق جمیل کے پاس گھومنے جاؤں گا, تو وہ یہاں سے نہیں ملے ان کو, بڑی مشکل کے ساتھ. کوئی بھی نہیں ملتا ہے, یہ اصل محبت ہے جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے. جی انجینئر صاحب کو ملنا ہو, جس میں ملنا ہو سنڈے کو آ جائے. بالکل یقین کریں, اصل محبت ہمیں یہیں سے ملتی ہے الحمدللہ. جی. اچھا ویس بھائی کسی نے چندہ تو نہیں مانگا؟ نہیں, کوئی چندہ نہیں مانگا. ادھر کوئی سسٹم نہیں, کچھ بھی نہیں الحمدللہ, کچھ بھی نہیں. یہ یہاں پہ ہم اپنی علی بھائی کی محبت کے لیے آتے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. ہم لوگوں اتنے سفر ہمارے تقریباً کوئی شک نہیں,
मैं कहता हूँ कि 28 घंटे का सफ़र है कोयटा से यहाँ झेलम तक, 28 घंटे का। बस ये अली भाई की मोहब्बत, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। जी कुरान और हदीस कहते हैं कि जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए आप मिलो तो क़यामत वाले दिन अल्लाह का अर्श का साया उसके नीचे होंगे आप। बेशक बेशक, बस इसी के लिए बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।